السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور پروگرام کے آغاز میں ہی چلتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف۔ میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں، وعلیکم السلام۔ آپ نے کہیں جانا ہے؟ نہیں، پریس کانفرنس بعد میں کر لیتے ہیں، آپ پہلے ہو آئیے۔ جی آج آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ بھائی غصے میں کیوں نہ ہو، آپ نے بھی تو شروع میں ہی لافٹر لینا چاہا۔ کاہے کی جلدی ہے، ہم بھی یہی ہیں، لافٹر بھی یہی ہے، ہنسنے والے بھی یہی ہیں۔ کچھ تو سانس لیجیے۔ تو دوستو، جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ جب بھی ہم پکارتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ یوں دوڑے چلے آتے ہیں جیسے بلی کی میاؤں پہ اس کے بلونگڑے میوں میوں کرتے آتے ہیں۔ آپ کو بلونگڑا کہا ہے؟ ساجد بلی مجھے کہا؟ معافی چاہتا ہوں، آپ کو کہوں گا تو باگڑ بلا کہوں گا۔ بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ کے اس لیے بھی مشکور ہیں کہ ہمارے سامنے آنے سے آپ کے درمیان ایک فخر و انبساط کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ فخر تو میں لکھ لوں گا جی، ساتھ کیوں لکھنا جی؟ انبساط، انبساط، امب لکھ، امب، امب لکھ، امب جی، چوس لینا ہے، لکھیا نہیں چاہتا تیرے کو۔ امب امب لکھا ہے، لکھیا جی۔ کیڑا لکھی؟ چوسا کے لنگڑا؟ لکھ میں لینا جی، کھا کے تسی ویکھ لینا۔ امب لکھ کے اگے سات لکھ دے، انبساط۔ امب ساتھ ٹھیک ہے۔ ہماری یعنی پریس کانفرنس کا شروع سے ہی بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ پلیز ذرا سنجیدگی اختیار کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سنجیدہ سوال کریں پلیز، آپ پہلا سوال کر دیں سر۔ شاہ جی آپ کی عید کیسے گزری؟ یہاں کھڑے تھے ہم، ایسے گزر گئے جیسے خیبر میل خانیوان سے گزرتی ہے۔ بھائی ہم سیاست کے حوالے سے موڈ بنا کے آئے ہیں، آپ ابھی تک عید میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے یہ میٹھی عید ہے، کوئی بکر عید نہیں کہ آپ کی فریج میں ابھی تک گوشت منجمد ہے اس لیے آپ کے ذہن سے عید نہیں نکل رہی۔ شاہ جی اب منجمد کیا جی لکھنا جی؟ منجمد، منجی وڈی ہو کدی، منجی منجی ہاں جی، انہوں لکھ کے تے او دے اگوں یہ لا دے، منج منج، یہ لا منجی اگوں، یہ کیویں لانی اگوں جی؟ جی میں کوٹھے تو منجیاں لانا ہے۔ لکھ لینا جی منجی مودی۔ اس نے تو منجی ہی بودی کر دی ہے۔ اب ہم پریس کانفرنس کہاں بیٹھ کے کریں بھائی؟ پلیز آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سنجیدہ نوعیت کا سوال کیجیے۔ شاہ جی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، آپ پی ٹی آئی کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ ہم پی ٹی آئی کو وہاں کھڑا دیکھتے ہیں جہاں امریکہ کی دریافت پر کولمبس کھڑا تھا۔ ہم پی ٹی آئی کو وہاں دیکھتے ہیں جہاں چاند پر پہنچ کر نیل آرمسٹرانگ کھڑا تھا۔ ہم پی ٹی آئی کو وہاں دیکھتے ہیں جہاں اوول کے میدان میں فاسٹ بولر شاہ محمود کھڑا تھا۔ اوول کا ہیرو فضل محمود تھا، فضل محمود۔ چلو محمود تے اودے وچ بھی سی نا، ادھا رانجا ساڈا بھی راضی ہو لین دے۔ ہماری پارٹی میں عمران خان کو صرف فاسٹ بولر ہونے کی ہی تو فوقیت حاصل۔ فوقیت یار میرے پاس وہ تو کنے فاقے کٹے نے تینوں پھر بھی فوقیت نہیں آندہ لکھنا۔ فوت لکھنا تے آندہ ہی نا، ہاں جی ہاں جی۔ وہ لکھ کے تے اودے وچ بڑی کاف والی کی پا دے۔ شاہ جی جگہ چھوٹی ہے، چھوٹی کاف والی پاتا۔ بڑی کاف والی پانی انہوں چھوٹا کر کے پایا۔ کیا ہو گیا؟ آپ تو بالکل ایسا لگ رہے ہیں جیسے تھیٹر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تیو کی اقبال اکیڈمی تو آیا ہے۔ آپ بھی تھوڑا سیریس ہو، کیا ہو گیا؟ اچھا شاہ جی یہ فرمائیے، تحریک کے کتنے فیصد چانسز ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ دیکھیے تحریک تو اب نہیں رکنے والی۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का नाम है। ये तहरीक उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। उनते देख ले, मैं सारे लफ्ज आसान बोले। हालांकि मैं यूं भी कह सकता था कि इस मुल्क की तकदीर तहरीक में पिन्हा है। पिन्हा ते तेनू मौत पै जानी सी ते मेरे कोलों तेनू चपेट पै जानी सी। नहीं शाह जी, पिन्हा तो मैं लिख लेना वा। ते मैनू पहले दस, मैं खाम खा तेनू चपेट मार देती हूँ। अच्छा जी, ऐसे ही लगा हुआ है, पिन्हा नहीं लिखना आता। कैसे लिखते हैं पिन्हा? दसो शाह जी। हाँ लिख लेना है। हाँ लिख के ते ओदे विच पिन मार दे। मार दे पिन, नहीं ते मैं उठ के तेरे मुंह ते पिन मार देनी। नहीं शाह जी, मार शाह जी आप फिर उनकी तरफ चले गए हैं। ओ मैं नहीं जानदा बेटा, ओ मैनू ले जांदा है। तू इनू नहीं जानदी है, बड़ी वड्डी डैन है। 35 साल दा मेरे मगर लगा होया है। अच्छा शाह जी ये बताएं कि तब्दीली की क्या तवक्को रखें हम? देखिए जी। तब्दीली सामने नजर आ रही है। अच्छा। याद रखिए वो दिन दूर नहीं जब हमारा हाथ होगा और हुक्मरानों का गिरेबान। भाई शाह तब्दीली। जी, भाई नहीं बहन। तू एंकर है या नादरा विच लगा हो? ये बात शुरू करने के लिए भाई कहते अच्छा जी, फरमाइए फरमाइए। तब्दीली सामने नजर आ रही है। अच्छा। देखने के लिए चश्मे भी ना चाहिए। याद रखिए वो दिन दूर नहीं जब हमारा हाथ होगा और हुक्मरानों का गिरेबान। एक तरफ स्टेटस को होगा और दूसरी तरफ पुरुमीद पाकिस्तान। एक तरफ हक होगा और दूसरी तरफ बातिल का कब्रिस्तान। क्या कहने। गमों के बादल छट जाएंगे और खुशहाल होगा हर बच्चा, बूढ़ा और जवान। अल्लाह ताला भला करे। देखो ना, सीधे सीधे दिख रहे, समझ आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका। पेट भर के रोटी खाएंगे मजदूर, मेहनत का शौर किसान। हम देंगे अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान। और लैया गुजरेंगे तो आगे होगा मुल्तान। शाह जी, लैया किधर, मुल्तान किधर? ये लैया ते मुल्तान भी नहीं अगे पीछे करना, ते फिर कादा बनाना है नवा पाकिस्तान। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार वैसे आज मेरी बारिश वाली पशीन गोई साबित हुई है। वैसे तो मैं सुबह उठाऊं तो मुझे ऊपर नीचे 7 छींके आई है। जब भी मुझे 7 छींके आए ना, मैं गिनती फौरन कर लेता हूँ उस वक्त, तो मैं समझ जाता हूँ आज मौसम जो है ना वो बारिश वाला है। ऊपर से जब मैं दही लेने के लिए सवेरे गया हूँ, अच्छा। तो गली के नुक्कर पे गौरी साहब फांटा वाली निकर पहन के खड़े बर्फ वाला गोला चूस रहे। वो सेकंड इशारा था मुझे कि लो जी बारिश हो गई हो। अच्छा। बस मैं दही वाली दुकान पे पहुंचा हूं, मैंने अभी जाके कहना ही था कि भाई जी किलो दही दे दो, तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, फिर मैंने किलो की बजाय आधा किलो ही दही खरीदा। मैंने कहा वापसी पे रास्ते में आधा किलो पानी तो पै ही जाना है इसमें। वापस मैं आया हूं तो गली के नुक्कर पे खलोता हुआ गोरी जो बर्फ वाला गोला चूस रहा था, बारिश से सारा गोला चौक इसके पेट पे पड़ा हुआ। गौरी काट और पीपल पार्टी का झंडा ही आधा लग रहा था। इसका मतलब है कि गौरी पे 2 रंग गिरे हुए थे, सब्ज और सुर्ख, है ना? ओ नहीं जी, काला और हरा गिरा है, लाल तो मैं खुद हूँ। बहुत अच्छे, तो थोड़ा रखो, अगे पीपल पार्टी का बुरा हाल है बेचारी। लो जी घर पहुंच के मैंने जब डोल तुम्हारी परजाई के अगे रखा तो कहती है ये दही किलो है। मैंने कहा जी किलो ही है जनाब, तोड़ के देख लो। मैं जरा उत्तों दी प्यार ना, मैंने कहा कहीं घबरा ना जाऊं मैं। मुझे कहने लगी नहीं लग रहा किलो। मैंने कहा किलो ही है, मैंने जो जिंदगी में पहला वादा किया था ना, तो मैं सारी जिंदगी खुश रखूंगा। मैं आज तक उस पे अमल कर रहा हूं। अच्छा यार, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अक्सर मैं सोचता हूँ कि तुमसे ही पूछूंगा, तुम जी। सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, कि जब शादी होती है। लो जी सवाल मुश्किल जो बड़ा, एक ब्यालो जी और एक बीवी आलो जी, ये दोनों सब्जेक्ट बड़े मुश्किल है मेरे।
सवाल ये है कि शादी के वक्त हमेशा लड़का ही लड़की के वालिदैन से ये वादा क्यों करता है कि जी मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, कभी लड़की ने लड़के के वालिदैन से ये वादा नहीं किया। शाबाश यार, लड़की बेचारी कल्ली कारी अपना सारा टब्बर छोड़ के, घर छोड़ के उसके साथ रुखसत हो रही होती है। उस वक्त लड़की के घर वाले सारे बेचारे पहिए मुर्दा होए हुए होते हैं, जैसे कहते हैं अपना यार वो हुए होते हैं, वो निडाल, गम से निडाल, गम से निडाल। वैसे लव ये ठीक नहीं है मगर एडजस्ट कर लेता हूँ। गम से निडाल लड़की वाले होते हैं, उनको हौसला अफजाई की जरूरत होती है। वैसे किसी और सियाने ने ये जवाब दिया था कि इसलिए नहीं लड़की वादा करती कि लड़कियां झूठ नहीं बोलती। और लड़के झूठ बोलते नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा तोड़ लो किलो नहीं है पूरा, पड़ी लोकड़ी जब तकड़ी पकड़ी है। भाभी ने घर में तराजू रखा हुआ है। तराजू नहीं रखा हुआ, तकड़ी रखी हुई है। खामद अगर हल्का फुल्का लुच्चा हो ना तो फिर बीवियां तकड़ी रख लेती है। लेकिन वो दही तो तराजू वाला रहे नहीं, वो तो पानी वाला हो गया ना। नहीं भाई जी, पकड़ा गया मैं, 1.25 किलो निकला। फिर अखीर अल्लाह माफ करे मुझे, अल्लाह माफी दे दे। दूसरा झूठ मैंने ये बोला कि मैं ऊपर से मलाई खा के हूँ इसलिए 1.25 किलो रह गया। बहरहाल बारिश हुई है, सबको मुबारक हो, हैप्पी रेनिंग। सेम टू यू। जी क्या खबर है आज की? जी खबर है पीआईए के सीईओ कहते हैं पीआईए ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। गौर से पढ़ो, PIA लिखा हुआ है। जी पीआईए ही लिखा है। वाकई जी। ये तो ऐसी है जैसे को खबर आ जाए जी कि फिल्म स्टार मीरा आइंदा पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाया करेंगे। या फिर खबर आ जाए कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कर्जा मांग लिया है। बड़ी अजीब बात है, पीआईए ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। जहाजों से ही कमा रहे हैं या साइड पे उन्होंने 30-40 रक्शे डाल दिए। खैर एयरपोर्ट्स पे उन्होंने 30-40 किराने की दुकानें डाल दी। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मस्जिद का खर्चा चलाने के लिए फ्रंट पे दुकानें डाल लेते जी। बिल्कुल ठीक है। या ये भी हो सकता है कि पीआईए वालों ने कहा कि यार ये जो लाहौर के चौकों में जहाज खड़े हैं ये हमारे ही है ना, इन पर टिकट लगा के वहां से इनकम हो सकती है। पीआईए कहां से मुनाफे में आ गई? पीआईए तो सब पी गई है, पीआईए नहीं पी गई है। नहीं वैसे बात सोचने वाली है, अगर सीईओ साहब ने कह दिया कि मुनाफे में आ गई है, हाँ। तो कुछ ना कुछ साइड भी यार ये भी हो सकता है सारे जहाज उन्होंने झाड़ चूड़ के खड़े कर दिए और कहें कि यार उड़ा के नाम एक कोई शायद मुनाफा हो। वैसे बड़ी खुशी हुई मुनाफे वाली बात सुन के, वरना रेलवे और पीआईए के साथ खसारा इतना लफ्ज अच्छा लगता था, जचता था। बिल्कुल ऐसे जैसे तुम कहते हो कि मेरा सुर्ख रंग है। चलो बहरहाल मुबारक हो जी पीआईए साहब। क्या है अगली खबर जी? जी रोशनी के शहर के हवाले से खबर है, अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। बिल्कुल 100% ठीक फरमाया सिराजुल हक साहब ने। बहुत बुरी हालत है अभी तक, और जो भी कर रही है वहाँ पे वो रेंजर वाले फौज वाले कुछ कर रहे हैं। हुकूमत नाम की वाकई चीज ऐसे नहीं है कुछ भी कराची में, जैसे आप कह लें कि गौरी में सफेद नाम की कोई चीज नहीं। हर मिसाल मेरे पे फिट होती। जरा बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना तो तुम जाहिर है दांत सफेद लेके ही फिर रहे। वाकई मान से बिल्कुल ही हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मैं तो कई दफा सिंध असेंबली का इजलास देख रहा होता हूँ ना, तो मुझे सीएम की कुर्सी पे ऐसे लगता है कोई परिंदा बैठा हुआ। कायम अली शाह साहब कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो असल में इसको भी काम कहते हैं, इसको भी काम कहते हैं, इसको भी काम कहते हैं, इसको भी काम कहते हैं। बड़ा काम किया मैंने, अभी 2 दफा ऐसे किया। वो तो अल्लाह ने जिंदगी दे, कहीं जाते हुए स्लिप हो जाए तो कहते हैं ये भी मैंने बड़ा काम किया। बुर्श कर लें तो थक जाते हैं। अच्छा। तफसील बताते हैं, कहते हैं यार बड़ा काम में पहले इधर नु भेजना फिर इधर नु भेजना। अभी तो उनको कंघी नहीं करनी पड़ती, वरना बहुत काम बढ़ जाना था। वो तो अजरक कंधों पे डाल के कहते हैं बड़ा बोझ है मेरे कंधों पे।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वजन कम करने का एक नुस्खा बताऊं? बताओ। वीडियो देखो। दिखाएं। देखते जाना जरा। और खैर ये चिप्स बहुत अच्छी। कैसे अल्लाह बड़। मेरा ख्याल ये पतला होने का नहीं, मोटे होने का नुस्खा। अगर ये तरकीब मैं करूं तो मैं तो हमटी डमटी हो सकता हूं। ये वीडियो वैसे इसहाक डार साहब को दिखाई जानी चाहिए, जो एक तरफ हुकूमती जो अल्ले तलल्ले हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ ऊपर तले गैर मुल्की कर्जे लिए जा रहे हैं, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। हाय हाय हाय, बेचारा इस तरह जोर लगा के पाँव उठा रहा है जैसे निकर में फंसा हुआ है। मेरा ख्याल है कि इसका टारगेट ही सिर्फ इतना सा है कि इतना वजन कम हो जाए कि मेरी निकर जो फंस गई है वो एक दफा उतर जाए। अच्छा, ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, देखना जरा। ये पहचानो क्या है? क्या है जी? ये जो साइज में छोटा है ना, हाँ ये जी। कीवी फ्रूट है, अच्छा। और लेफ्ट पे जो है वो बच्चे का सर है। कैसा है? अरे वाह। अच्छा, रत्ती बच्चा बराबर- परे को लेटा हुआ है और उसका सर है। बल्ले बल्ले। जरा भी फर्क नहीं है। वाह 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 वाह, वाकई किसी ने बहुत ही अच्छी तस्वीर खींची है कि ढूंढे ये क्या है। वो लगता है कि वो जो छोटा फल है उसी का ये बड़ा साइज बड़ा हुआ। और देखो प्राइस टैग दोनों पे लगाया हुआ है। बड़े के साथ छोटा मुफ्त। नहीं, उसी से तो भुलेखा पड़ रहा है कि ये दोनों ही फ्रूट है। वो सर के ऊपर भी टैग लगा दिया। अच्छा, एक वीडियो देखते हैं। बहुत अच्छे। बताओ। शाबाश, यानी ट्रक में चूल्हा लगाया हुआ, ट्रक भी चल रहा है और ऊपर से चूल्हा भी चूट रहा है। देखो ना, फिर ट्रक भी चूल्हा ही है। और ये कहता होगा कि ट्रक ने 1 घंटे में 35 किलोमीटर सफर किया होगा और मैंने 70 किलोमीटर। लेकिन ट्रक किधर जा रहा है? वो इधर जा रहा है। यदि पिंग टूट गई ना तो 70 किलोमीटर और पे होना है। मुझे लग रहा है इस ट्रक में कुछ स्मगलिंग का सामान है और ड्राइवर ने इस बंदे की ड्यूटी लगाई है कि माल पे भी नजर रखना और बाहर भी नजर रखना। तो यही एक तरीका था। ट्रकों पे पड़े झूले, हम स्मार्ट थैले तुम क्यों फूले। बाजी वाह। बहुत अच्छे। अच्छा भाईजान, एक तस्वीर देखे जरा। जिन्हें सब तस्वीरें कटी जा रही है, कोई फिल्म कटो। सुल्तान खाओ बड़ी अच्छी जा रही है। बहुत अच्छे। अब ये जो व्यूअर्स ने भेजी होती हैं तस्वीरें और वीडियो क्लिप, वो दिखाने होते हैं। फिल्म दिखाओ, इतने तुम सुल्तान के शकीन। ये देखे। इसे ही सुल्तान समझो। देखो ना, जो कहते हैं ना कि पंजे के होते सिर कढ़ाई च, उसने सोचा कढ़ाई तो छोटी है, सीधा देग ची सिर कर। और मुझे लग रहा है ये कोई गुजराले का जवान है, बोटी ढूंढने गया होगा। क्योंकि दरिया से मछली पकड़ना और देग में से मछली की बोटी पकड़ना बराबर है। इन्हों कहते ना यार, इन्होंने तो सिरों पैरों ही लाई। अपनी अपनी नजर होती है ना मामला देखने की। अब हम में से कोई बंदा सोच रहा होगा ये तस्वीर देख के, यार देख की सफाई कितनी मुश्किल होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो बोलने से पता लग गया कौन। अच्छा यार, तुम देखो कि बच्चों में मोबाइल की एडिक्शन, दिलचस्पी किस हद तक पहुंच चुकी है। ये देखना जरा। बेहद के। ये देखो। वाह जी वाह। और हमारे दौर में कहा जाता था, बेटे खा लो नहीं तो भाऊ खा जाएगा। वाह 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 वाह। उसे फीड दी जा रही है और साथ उसको मोबाइल पे गेम दिखाई जा रही है। बड़े मुश्किल बच्चे पालने जी। एक नू मोबाइल ते लाया, एक नू खाने ते लाया। बड़ा मुश्किल जी, बड़ा मुश्किल। ये बेचारी रोई अपने कहती है कर्मा वाले पिंड वापस ही टुर चलीए। उत्थे बाल बाबा खेतों च खेड के वड्डे हो जाते।
मोबाइल की बैटरी डाउन होगी ना बड़े ने रोन लग पैना। उसने बैटरी चार्जर पे लानी है तो निके ने रोने लग गया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद यार, अक्सर दुकानों के ऊपर बचपन से एक फिक्रा लिखा हुआ पढ़ते आ रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक आधार बंद है। तो जो आजकल कश्मीर में सूरत हाल बनी हुई है और जितनी तहरीक तेज हो गई है, मुझे लगता है इंशाल्लाह आधार खुलने वाला है इंशाल्लाह। मुझे वो वाकया याद आ जाता ना, किसी होटल वाले ने लिखा था कि आप इस होटल में आए, खाना खाएं, बिल अदा ना करें, बिल आपका पोता आके अदा करेगा 50 साल बाद, 60 साल बाद। एक बंदा बड़ी बाजू फैला के जाता है तुम्हारे जैसा, तका के रोटी शोटी खाता है, लस्सी पीता है, तो बाहर जाने लगता है। होटल वाले कहते हैं बिल, कहता है आपने तो बाहर लिखा हुआ है कि बिल आपका पोता अदा करेगा। कहते हैं नहीं, ये वो बिल है जो आपके दादा जान रोटी खा के गए थे। हाय हाय हाय, मुझे लग रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह कश्मीरियों ने, आवाम ने अब जद्दोजहद शुरू कर दी है ना, इंशाल्लाह पिछले बिल भी ये वसूल करके रहेंगे। मेरा ख्याल है कि पिछले 10-15 बरसों के दौरान जो तरीके आज़ादी कश्मीर है, इस संजीदगी है, सीरियसनेस की इस इंतहा तक नहीं पहुंची थी जहां पे आज नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पूरा मकबूजा कश्मीर इस वक्त सील हुआ है, हर तरह का जोर लगा रही है हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान की फौज, लेकिन कुछ बन नहीं पड़ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये जो अपराइजिंग है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो कैसे किया जाए। बल्कि मैं सच्ची बातों में एक बात, मतलब मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि जिस तरह के हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए मकबूजा कश्मीर में हालात पैदा हो गए, खुदा न खास्ता वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए कोई आलमी सतह पे कोई बड़ा ड्रामा ना स्टेज करे, ताकि आलमी तवज्जो जो है वो इस मामले से हट के पाकिस्तान पर दबाव डाल दे। मुझे लगता है ये जो अपना बुरहान वानी के वाक़े के बाद, उसकी शहादत के बाद जो सूरत हाल हुई है, मोदी ने सुना है कि खबर मैंने पढ़ी है कि मोदी ने अपने मीडिया के साथ गुस्से गर्मी शुरू कर दिया कि आपने उनको बुरहान वानी को हीरो बना के तो दिखा रहे हैं। अच्छा, मोदी का हिंदुस्तानी मीडिया से जो गिला है वो इस हवाले से एक हद तक समझ भी आता है कि तहरीके आज़ादी कश्मीर में मेरा ख्याल हिस्ट्री उठा के देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीरियों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है, थोड़ा सा। और वो सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि गोली ना मारो, गिरफ्तार कर करके जेलों में डालो इनको। अब इसी मोदी की इंस्ट्रक्शंस पे हिंदुस्तान के मीडिया का एक खास सेक्शन दानिस्ता तौर पे बुरहान वानी की शहादत के बाद ये जो अपराइजिंग है और बुरहान वानी को जो हीरो बना के पेश किया जा रहा था, वो जिनके बारे में मोदी साहब का ख्याल है कि ये दानिस्ता तौर पे ऐसा किया जा रहा है या गलत तौर पे ऐसा किया जा रहा है, तो अब वो कहते हैं कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की ISI है। भाई बंदा, हालांकि सियापा उनको खुद पड़ गया हुआ है, जब से ये तहरीक जोर पकड़ी है, मोदी का मुंह ही बड़ा अजीब सा हो गया। 2-3 दफा मैंने तो पहले गौर किया है कि यार ये वाकई मोदी का मुंह है या इसने गर्दन के पे को पेड़ा लगवाया हुआ है, बकायदा सोच गया मुंह इसका। ये जिस नौजवान की शहादत हुई है बुरहान वानी की, इसकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि यूं समझ लो जैसे हमारे नौजवानों के अक्सर कमरों में हिंदुस्तानी एक्टर्स की तस्वीरें नजर आती हैं ना, बिल्कुल इसी तरह मकबूजा कश्मीर के जो नौजवान हैं उनके कमरों में इसी बुरहान वानी के पोस्टर्स लगे हुए नजर आया करते। इस कदर पॉपुलर था, और अब उनको ये खौफ खाया जा रहा है। ये हम नहीं यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तानी मीडिया ये बात नहीं कर रहा, ये जो हिंदुस्तानी फौज का जो श्रीनगर का कमांडर है साबिक अता हुसनैन, उसने भी ये बात की है। फिर जो मकबूजा कश्मीर का साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, उसने भी एक ही लफ्जों में एक अपना खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि कब्र में लेटा हुआ जो बुरहान वानी है वो कंप्यूटर पर बैठे हुए बुरहान वानी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि बुरहान वानी ने ये जो शऊर पैदा किया था हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ लड़ने का, ये जो जिहाद का जज्बा पैदा किया था, ये सारा सोशल मीडिया के थ्रू किया था। और ऐसा ब्रिलियंट नौजवान था, इस कदर वो उसने मैट्रिक में मकबूजा कश्मीर में पूरे में टॉप किया था। बल्ले 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 बल्ले, उसने वाकई बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ मोदी को। मैंने तो सुना मोदी ने परसों चौथ जाते जाते प्रोटोकॉल अपना रोक के ना उतर के नीचे गाड़ी से एक बाबे की साइकिल खड़ी करके उसके चेन में अपना हाथ दिया और उसका
ہاتھ دینا بنتا ہے, اس کے بغیر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے. تو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت ان کے لیے پریشانی کا جو عالم ہے, جو نہج ہے, وہ پچھلے میرا خیال 15-20 برسوں میں کسی ہندوستانی وزیر اعظم نے نہیں دیکھی. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مودی کو میں نے سنا سڑک کے کنارے پہ باندر کی مداری ہو رہی تھی, تو مداری نے ہمیں زور سے آواز لگا کے پوچھا ہے کوئی میرے باندر نہ لڑن والا, تو مودی گڈی چ اتر آیا. اس نے کہا کہ یار مجھے بڑا غصہ ہے, اس کے ساتھ ہی لڑ کے میرا غصہ نکلواؤ کسی طریقے سے. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں گوری, تمہیں پتہ نہیں ہے, پاک جنید کو تو پتہ ہوگا, یہ بیچارہ جو ہے نا برہان مانی ایویں ہی نہیں ہے اس نہج پہ پہنچا, یہ بڑا تنگ ہوا تھا. یہ نہیں طور پہ بھی ٹارچر دے دے کہ ان کو اس نہج پہ پہنچایا ان لوگوں نے خود. اس کا جو بڑا بھائی تھا ایک, اس کو بار بار فوج اٹھا کے لے جاتی تھی, اس کو ٹارچر دیتی تھی, بڑا تنگ ہوتے تھے یہ بیچارے لوگ, بڑی پریشانی تھی ان کے کار میں. پھر یہ پچھلے سال اس کے ایک دوسرے بھائی کو شہید کر دیا فوج نے. اس کے بعد پھر بھی یہ سوشل میڈیا پہ آیا کہ بھئی دیکھ لو, نہ میری کو عدالت سن رہی ہے, نہ کو گورنمنٹ سن رہی ہے, تو پھر میرے پاس تو یہی ایک ہے اپنا رستہ کہ میں پھر بندوق ہی چکوں. اور تمہیں ایک زبردست بات بتاؤں کہ جب یہ سوشل میڈیا پہ نوجوان آتا ہے اور یہ اپنی بپتا سناتا ہے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو, تو 3 دن کے اندر 3000 وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ حزب المجاہدین میں شرکت کرتے ہیں. جی سر بالکل, اس کی مقبولیت کا تو یہ عالم تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا, کیونکہ 6 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی اس کے جنازے میں. اور چاروں طرف سے جنازے کے وقت فوج نے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا علاقے کو کہ کوئی شخص نماز جنازہ کے لیے نہ. یہ 6 لاکھ وہ تھے جو بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے وہاں تک پہنچے تھے. ہاں جی, یعنی اگر اجازت ہوتی تو یہ تعداد کہاں تک جا سکتی تھی, ون کین امیجن. نہیں, یہ تو تم تو ہر جرنلزم سے وابستہ آدمی ہو نا. میں ایمان سے حیران ہوں کہ سارے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں اس طرح یہ پھیلا ہے اس کا نام ایک دم, خاص طور پہ اس کی شہادت پہ تو پوری دنیا میں رولا پڑا ہوا ہے اس کا. سوال تو اب یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ دنیا کے جو بڑے ہیں ان کے کانوں پہ جھوں کب رینگے گی. میں تو کہتا ہوں کہ یار اوباما کو پکڑ کے نا 5-6 ملنگوں کے ساتھ کسی کمرے میں بند کر دو, ملنگوں کی جوئیں اتر کے اس پہ چڑھیں اور اس کے کان پہ رینگ جائیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 50 years. اچھا بھائی جان, آپ ماضی میں ہمیں بہت گئے دنوں کی بات ہے جب آپ سیاسی فلم دکھایا کرتے تھے, مسئلہ کیا ہے؟ شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تقریباً چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے تھے. جانے دو یار خدا کے لیے. نہیں, پرابلم کیا ہے؟ ڈائریکٹر نہیں مل رہا, پروڈیوسر نہیں مل رہا, یا ہیرو نہیں مل رہا. اگر ہیرو کا مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں. پرابلم کیا ہے؟ تمہیں ہیرو لے لوں, فلم میں نے فلپائن میں چلانی ہے. کیا مطلب؟ یار بات یہ ہے کہ معاشرے میں کہانیاں شٹوریاں جنم لیتی ہیں, قصے جنم لیتے ہیں جس پہ پھر قلم کار قلم اٹھاتے ہیں, اور یا پھر اس کا اپنا ڈرامہ لکھ دیتے ہیں, فلم لکھ دیتے ہیں, یا کتاب لکھ دیتے ہیں. تو شٹوریاں جو جنم لیتی ہیں اس میں ایجی پروڈکشن میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی شٹوری فلم میں فٹ ہوتی ہے. آج جو میں فلم تیار کر کے آپ کے لیے لایا ہوں اس کے مین کرداروں میں ہیں عمران خان صاحب اور پرویز رشید صاحب, اور فلم کا نام ہے ترنا میرے ویر دا. جناب عمران خان دھرنے اور فیس بک کے پہلوان, اب ہوا ہے یا بچپن سے ہی ہے پھڈے بازی کی جانب رجحان؟ خود بھی ہوتے ہو اور ہمیں بھی کرتے ہو ہلکان, ہر وقت پیدا کرتے رہتے ہو سیاسی بحران, مسلسل 3 سال سے ایک ہی دے رہے ہو بیان, حکومت اتنے دن کی ہے مہمان, حکومت اتنے دن کی ہے مہمان. ایک ہی بات سن سن کے اب تو دیواروں کے بھی پک گئے ہیں کان. تمہارے بیانات سے میاں صاحب تو نہیں لیکن میاں مٹھو ضرور ہوتا ہے پریشان, کیونکہ وہ بھی ہفتے میں ایک لفظ سیکھ کے ڈال لیتا ہے گفتگو کے درمیان. آپ کا تو ایک ہی مصرے پر مشتمل ہے پورا دیوان, ملک کا کرتے ہو نقصان صرف چمکانے کے لیے اپنی سیاسی دکان.
हमारी हुकूमत को हिलाना इतना नहीं आसान। अब तो छोड़ दो हमारी जान। जुगत करता तो नहीं, मगर तुम्हारा मुंह ऐसे है जैसे तंदूर में लटका हुआ नान। कर दे पक्की नहीं वैसे तंदूर में लटका हुआ नान। लो जी, परवेज साहब की तो हो गई बंद दुकान। जी इमरान खान। और देखो परवेज रशीद, मुझे तो वैसे ही तुम लोगों पे गुस्सा है बड़ा शदीद। तुम लोगों ने तो खराब कर दी है मेरी ईद। अवाम की भी तुम लोग खो चुके हो ताईद, मुझे रोज बताता है शेख रशीद। अब तुम लोग बनना चाहते हो सियासी शहीद, जरा सी भी नहीं बर्दाश्त करते तनकीद। हुकूमत में भी मुगलों की करते हो तकलीद। मुल्क को समझ रखा है तुमने अपना जर खरीद, और पाल रखे हैं तुमने आबद शेर अली जैसे बदीद। और खुद भी ऐसे बयान देते हो जैसे वजीर नहीं मियाँ साहब के हो मुरीद। मीडिया को वैसे ही लेते हो खरीद। टैक्सी स्कीम के अलावा आता ही नहीं तुम्हारे ज़हन में आइडिया जदीद। पटवारियों से लेते हो तुम इलेक्शन जीतने की रसीद। पता नहीं कब तक तुम लोगों की शक्लें देखनी पड़ेंगी मजीद, लेकिन मैं भी करता रहूंगा मिट्टी पलीद। ये ईद तो मिस हो गई है, अब अगली ईद पे सुनाऊंगा खुशी की नवीद। शादी की नवीद सुनाएंगे। और आमनल बाओ पारशीद। वो तो हमें अंदाजा है इमरान, आपसे हमने कभी भी अच्छा नहीं रखा गुमान। काश सियासी यू टर्न पर भी वार्डन कर लेता चालान। हर जगह पैदा कर लेते हो झूठ बोलने का सामान। बड़ा कहते थे शादी करूंगा अलल-ऐलान, इस बार तो कंटेनर पर चढ़ने से पहले ही पा 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 पा। अखीर ते नून है ना आप भाई। नून दा जो है तो नून ही पानी और काफ पा दिया। भूल जाओ अपने वजीर आजम बनने का अरमान। पहले लगाते थे मियाँ साहब पर बहुतान, अब साथ पुनना शुरू कर दिया उनका सारा खानदान। बस कर दो वरना जून जुलाई में गर्म कोट पहनकर फिरते हैं तुम जैसे नादान। और भी दुनिया में लोग बसते हैं मेरे भरा, और तुम्हें क्या सिर्फ मेरे खिलाफ बोलने की मिलती है तनख्वाह? कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें मेरा खून साड़ के? हर वक्त मेरे ही पीछे पड़े रहते हो पंजे झाड़ के। हम तुम्हारी सारी असलियत जानते हैं, तुम जैसे मुअज़्ज़ज़ उम्रा करने जाते हैं और उधर जाके मांगते हैं। मुझे मालूम है कि आप जैसा बंदा इससे आगे नहीं सोच सकता। मैं जितना मर्जी गिर जाऊं शेख रशीद की धूल को भी नहीं पहुंच सकता। जब देखो नून लीग पे चढ़ाई, पीपल्स पार्टी हो गई लाडली और हमारी बारी बन गए कसाई। बाप को देते रहे हो गालियां और बेटे के साथ भाई भाई। आओ बिलावल के साथ कंटेनर पे, तुम्हारी मजीद होगी जगह साई। अब बोरिया बिस्तर लपेटो फटाफट, अब तुम्हारी हुकूमत के हो गए हैं टिले नट। अब काम नहीं आना तुम्हारे गुल्लू बट। मुझे तो नून लीग पे वैसे ही है बड़ा वट। लो ओ की कहना है अफ्रीका दे बट। हाँ सब तुझते है ही मुंह फट। मैं नेरा नहीं मुंह फट, वेले सिर ला भी देना मैं सट। धरने दे जाते हो, कम करो झटपट। ओए अपना छाबा चुक ते नाल वाली गली चो पैसे वट। जितना मर्जी जोर लगा लो हमारा इक्तदार से जाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें समझाना उतना ही मुश्किल है जितना चिक्कड़ में बैठी हुई मझ को उठाना मुश्किल है। और खुदा के लिए 1.5 महीना इलाज की खातिर बाहर चले जाते हो। मुझे पता है खाम खा तुम मामलात लटकाते हो। अपना फिक्र करो, ऑरेंज ट्रेन तुम्हारी पूरे सूबे का बजट गई है खा। इंशाल्लाह उसी ट्रेन में से मुंह निकाल के तुम करोगे चा। और तुम लोग तो जबरदस्ती मीडिया पर करा रहे हो अपनी वाह वाह। जदों भी ये घर होंदी है ना एडी एडी लम्मी का, ये कर लेंदा जे नवा ब्याह। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।
आलू वाले परांठे, आलू वाले परांठे, आलू वाले परांठे, आलू वाले परांठे, आतले पक्के, आतले पक्के, आतले पक्के।